Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Okay, let's get started with today's continuation of our next lecture of chapter number 2, जो हम secretarial practice SP के subject में कर रहे हैं. To quickly recap, last time हमने मैंने सिखाया क्या था, आपने मुझसे सीखा क्या. चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. स्पेसिफिकली उसके अंदर, बिसाइड्स नोइंग द वेटेज विच इज अप्रोक्सीमेटली 17 मार्क्स, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है. फाइनेंस का मतलब पैसा, वो पैसा कंपनी कहाँ कहाँ से जमा करती है. दो चीज़ें समझी हमने कि ओन्ड कैपिटल अलग होता है, बोरोड कैपिटल. अपने परिवार वालों का जो पैसा होता है वो आप ओन्ड कैपिटल कह सकते हो. जो आप परायों से, दूसरों से बोरो करते हो, उसको आप ऑब्वियसली बोरोड कैपिटल कहोगे. नाउ इन ओन्ड कैपिटल, द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओन्ड कैपिटल वाज गिवन टू यू, एंड इन दैट वन पार्ट ऑफ इट, शेयर्स, इसको आपको एक्सप्लेन किया गया था. वी हैव नॉट गॉट इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स. टुडे हमारा जो मुद्दा होगा वो रहेगा इक्विटी शेयर्स क्या होता है. लास्ट टाइम शेयर्स पढ़ लिए, शेयर्स के जो फीचर्स होते हैं वो मैंने समझ लिया. विराट इंपोर्टेड कावासाकी, वो भले ही साउंड्स वेरी वेरी बेवकूफाना, बट डेफिनेटली हेल्प्स मी रिमेंबर द 10 डिफरेंट फीचर्स ऑफ शेयर्स. टुडे कुछ अलग रहेगा, लेट्स सी. बट इक्विटी शेयर्स की चर्चा आज हम करने वाले हैं. सो बिसाइड्स जस्ट रिमाइंडिंग यू, ओन कैपिटल, उसके बारे में थोड़ी चर्चा, रिटेन्ड अर्निंग, प्रोमोटर्स कौन होते हैं, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्लॉज क्या होता है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन लास्ट टाइम. ओके, शेयर क्या होता है, शेयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा क्या दिया गया है, ऑल्सो हैज़ बीन कवर्ड अप लास्ट टाइम. एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, 10 ऑफ देम टू बी स्पेसिफिक, completely done. Today our focus is on types of shares. अच्छा, मतलब ये क्या बवाल है. वेल, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो इतना पुराना भी नहीं है, कहता है या हमको इन्फॉर्म करता है और हम पढ़ते हैं कि शेयर जो होते हैं 2 कैटेगरी के होते हैं. मीनिंग, आप जब कंपनी में शेयर खरीदने जाओ ना, प्लीज अंडरस्टैंड, पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं है. दैट सर मुझे कहाँ पे चल के जाना पड़ेगा, कौन से राशन के लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू डू दैट. आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है. ओके, क्योंकि शेयर्स जो एक ज़माने में पेपर में रहते थे, आजकल पेपर में नहीं मिलते. ओके, ऑटोमेटिकली उनका डिजिटलाइजेशन, मतलब डीमैट
ओके, दैट इज द प्रोसेस जो आप लोग 12वीं में आगे जाके सीखने वाले हो, वो किया गया है और उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बन चुका है। ओके, जैसे आज भी अगर आप वोट देते हो तो यू हैव टू गो समवेयर और आपको एक चीज पे बटन दबाना पड़ता है। जब आप वो बटन दबाते हो तो आपका वोट रजिस्टर हो जाता है, बट प्रीवियसली वो बटन नहीं होता था, आपको एक पेपर दिया जाता था, उस पे पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स होते थे और आपको कोई ठप्पा या मार्किंग करना पड़ता था। ओके, तो ऑब्वियसली उसमें पेपर वेस्ट होता था, उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड ज़्यादा रहते थे, गिनती में गलती हो सकती थी, बट अभी वो वोटिंग पैटर्न को डिजिटल बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है। Similarly, shares, any type of shares, whether it is equity or preference, is converted into what? Digital shares. Okay, so shares right now कैसे कैटेगरी बनाया जाता है? Above it says a company can issue different type of shares, equity, preference. उसके अंदर भी परिवार लंबा है. There are 2 types of equity and there are multiple types of, at least 8 types of preference shares. Today we are not going to get into the details of preference. बिल्कुल नहीं, डिटेल मतलब मैं कुछ नहीं बताऊंगा. We will only try to understand equity shares. Okay, इसका नेचर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या रहते हैं. बेसिकली एट द एंड वी विल कम टू अंडरस्टैंड कि ये इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट क्या होते हैं एंड इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है. ओके, कुछ चर्चा इक्विटी शेयर्स पे जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको जानना जरूरी है. ओके, क्या कहा गया? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स. यस, इट मे साउंड सर मतलब एकदम सादे शेयर्स है. यस, ओके, क्योंकि जो खास शेयर्स है जिनको एक अलग दर्जा दिया जाता है उसको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. इसके लिए उसका नाम भी प्रेफरेंस है. जो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स है ना उसको हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं. ओके, तो अगर आप बोलोगे सर फिर ये नॉर्मल ऑर्डिनरी हमको क्यों खरीदना है, हम तो स्पेशल खरीदेंगे. ओके, ऑर्डिनरी के फीचर्स अलग रहते हैं और स्पेशल के भी कुछ फीचर्स अलग रहते हैं. आगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क associated with the ownership. Right now this will sound very technical. सर मतलब own the company का मतलब क्या है? कंपनी में अगर आप कहाँ पे दुकान में जाओगे, बराबर, आप कोई एक दुकान थी आपके एरिया में, आप गए, वहाँ पे 5 लोग बैठे थे, तो आप दूर से सोच रहे हो 5 बैठे, मालिक कौन है? बराबर, एकदम सिंपल सी बात है, आप जाके पूछ सकते हो, बराबर. और ना अकड़ के पांचों के पांचों लोग, कोई सच कोई झूठ, बोलेगा मैं भी मालिक है, कोई बोलेगा नहीं मैं भी मालिक है. एक्चुअली एक ही मालिक है, बाकी के लोग झूठ बोल रहे. सर वो कैसा पता चलेगा? एक काम करो, 10 लोगों को बुलाओ, बराबर, उनके हाथ में पत्थर दो, ऐसा करो मत, मैं से बोल रहा हूं, और दंगे का ओके एक्टिंग करवाओ उनसे, एक्टिंग. वो 5 में से 4 भाग जाएंगे. कौन वहां पे बैठा रहेगा? द ओनर, क्योंकि ओनर उस दुकान का पूरा जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा बुरा का लेता है. वो 4 लोग बोलेंगे हम भाग जाएंगे, हमारा क्या नुकसान होने वाला है, बट ओनर को पता है मैं भाग जाऊंगा तो मेरे दुकान को लूटा जाएगा, मुझे ये दुकान बराबर से बंद करनी पड़ेगी, वरना ये दुकान के अंदर तोड़फोड़ हो सकता है. रिस्क मेरी दुकान का मेरे ही गले में है, मेरी जिम्मेदारी है. बाकी के लोग टाइम पास थे, हाय हेलो के लिए बैठे थे, वो फुकट की चाय के लिए बैठे थे, वो लोग निकल गए. तो आई रिपीट माई सेल्फ, ओके, आई रिपीट, एग्जाम्पल दिया है, ओके. असलियत में प्लीज डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, बट इट इज द ओनर, ओके, इट इज ओनली द ओनर हु विल रिमेन देयर, बाकी के लोग भाग जाएंगे. ओके, हाँ, वेरी सिंपल एज दैट. फॉर यू who are your kind of owners as a student, your mummy papa, barabar. If you are in danger as a child, as a son, as a daughter, दुनिया भाग जाएगी. your mom and dad will stick with you to protect you. अपनी पूरी कोशिश वो कर लेगी, जो आप पे बुरा आना है वो अपने पे ले लेगी, because it is their responsibility. you their responsibility. Similarly, एक कंपनी की जो जिम्मेदारी होती है, भला बुरा, रिस्क, वो किस पे रहता है?
इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। ओके, सो एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो रिस्क नहीं लेता, वो जो भागने वाला है ना, वो कैटेगरी का बंदा है। ओके, मूविंग ऑन, इट सेज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, आफ्टर पेइंग द क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड्स, पैसा, बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिड्यूअल, बचा कुचा elements of income and assets. Again, maybe a little bit confusing. Sir, what is after paying claims of all other investors? If a company closes down, कंपनी की चैप्टर, पुस्तक बंद हो गई है, कंपनी कैसे अपने आप को बंद कर सकती है? जिन जिन को पैसा देना है, बैंक से लोन लिया, इससे लोन लिया, उससे लोन लिया, ओके, कंपनी को वो पैसा देना पड़ेगा। आपका 1 करोड़, आपका 2 करोड़, आपका 50 लाख, आपका 60, द इक्विटी शेयर होल्डर टिल द लास्ट अपना मुंह नहीं खोल सकता है, क्योंकि जो बचेगा पैसा, अगर बचेगा पैसा, वो सिर्फ वो बचा हुआ पैसा से अपना जो बनता है मांग सकता है। अगर कुछ नहीं बचा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यू विल से बट सर ये बहुत रिस्की है। यस, रिस्की है, बट ऐसा थोड़ी है कि कंपनी, हर कंपनी 2-2 दिन में बंद होती है। नो, इट इज जस्ट अ सिचुएशन विच इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि जो रिस्क होता है ना एक कंपनी को चलाने का, वो कौन उठाता है? नॉट द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स भाग जाएंगे, मालिक है वो रुकेगा, वो वहीं पे रहेगा, पूरी कोशिश करेगा अपनी डूबती नैया को नहीं डूबने से बचाने के लिए। ओके, हाँ, आगे कहा है, द फॉर्चून किस्मत ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज टाइड अप विथ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। मतलब इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, तगड़ा पैसा कमा रही है, तो कौन पैसा ज्यादा कमाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी पैसा कम कमा रही है तो कौन कम कमाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर कंपनी पैसा नहीं कमा रही है तो कौन नहीं कमाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की किस्मत और कंपनी का परफॉर्मेंस टाइड अप है, जुड़ा हुआ है। कंपनी ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई ऊपर, डाउन डाउन नहीं। That's the meaning of it. हाँ, if the company is successful, then they enjoy great financial rewards. अच्छा पैसा कमाती है। And if the company fails, the risk falls mainly on them, उनके ऊपर। It is exactly because of this position, equity share capital is also known as venture capital or risk capital. Keep this as common students in your अक्ल। ये वेंचर कैपिटल क्या होता है? रिस्क कैपिटल, कैपिटल जिसके साथ में वो पैसा जिसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है। अगर आपने पैसा डाला, रिस्क नहीं है, नहीं मेरा पैसा डाला, 100 रुपया डाला, 100 रुपया मिल जाएगा, तो किस बात का रिस्क? बट इक्विटी शेयर्स खरीदोगे तो जो पैसा आपने कंपनी में डाला है वो शेयर्स खरीदने के लिए, उसको कहा जाता है रिस्क कैपिटल, वो वेंचर कैपिटल। वो है रिस्क, बिकॉज कमाई ऊपर, कमाई नीचे और नो कमाई, कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ, however equity shareholders participate in the however equity shareholders participate in the management of the company. Very very simple. What do you mean by management of the company? ये कंपनी की गाड़ी कैसी चलनी चाहिए, ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनानी चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनानी चाहिए, कौन सा सर्विस देना चाहिए, किधर उसका ब्रांच होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? मालिक। बाहर वाले लोग बस बाहर से खड़े रह के तमाशा देखते हैं, या दे डोंट गिव एनी। उन लोग क्या बोलते हैं, हमको क्या करना है। ओके, जब आप ओला उबर में बैठते हो, बराबर, आप पॉसिबल है, ओके, आप उस जो ओला उबर की साफ सफाई का ख्याल आप क्यों रखोगे? क्योंकि आपको बैठना है, आपको पैसे देने हैं, आपको चले जाना है।
बट जो वो गाड़ी चलाता है उसके लिए तो वो गाड़ी जान से प्यारी होगी, बराबर। दंगा फसाद होता है ना, हाँ, कभी कुछ पंगा हो गया रास्ते पे, पैसेंजर भाग जाएगा, वो बाहर वाला है, ड्राइवर को तो रहना पड़ेगा, बोलेगा नहीं भाई मेरी गाड़ी नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो गाड़ी को जिस तरह मैनेज किया जाता है उसी तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। ओके, नॉट डायरेक्टली बट दे अपॉइंट पीपल, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग्स, एजीएम करके होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग। दे आर अलाउड टू वोट on all matters discussed at the general meeting, because if there is a meeting people can't shout मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, नहीं, सबकी बात सुनी जाएगी, मैक्सिमम की बात सुनी जाएगी। वोट करो, अगर कोई मुद्दा है और 100 में से 80 पीपल अग्री, वो पास हो जाएगा। ओके, 100 में से 60 अग्री, स्टिल मेजोरिटी, वो पास हो जाएगा। वोट, बट वोट करने का हक तो होना चाहिए। इट इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नॉट टू अदर शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, वेरी सिंपली, अगर आपको सरकार बदलनी है, यू शुड हैव द राइट टू वोट, अदरवाइज आपसे बक सकते हो, ये सरकार ऐसी है वैसी है। अरे भाई, बट तू क्या कर लेगा, तेरे पास तो राइट ही नहीं है वोट करने का। सो अगर बदलाव लाना है, चेंज लाना है एनीवेयर, you should have the right to bring that change, and the persons who have the right to vote, that is equity shareholders, can bring a change in the management of the company, कि ये कंपनी को चलाता कौन है हम डिसाइड करके हमारे वोट के द्वारा। ओके, हाँ, these were some points जो आपको सीखने हैं, याद रखने हैं, connected to equity shares. Right now I am moving into a main topic for the day, which is features of equity shares. Whenever आप एक मोबाइल खरीदते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी खरीदोगे, रेफ्रिजरेटर खरीदोगे, you will ask ये क्या करती है, तो आप क्या पूछने का कोशिश कर रहे हो, फीचर्स, इसमें क्या अलग है, बराबर, इसमें ये काम करती है, ये वाला पॉइंट है, हाँ, फीचर्स। तो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या है? एक, परमानेंट कैपिटल। सी, कैपिटल, ओके, इज मनी। वो पैसा कंपनी में कौन डालता है? शेयर होल्डर। यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर डालता है, हाँ, बट कितने टाइम के लिए डालता है? हमेशा के लिए। एटलीस्ट इतना तो आप सिंपल समझ लो, अगर कंपनी का दरवाजा बंद होगा परमानेंटली, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को उसका पैसा मिलेगा। अदरवाइज देयर इज नो लीगल कंपल्शन, ओके, ऑन। अगर इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा 10 साल के लिए मैंने पैसे दिए, बहुत हो गया, अब मेरा पैसा वापस दे दो, कंपनी को वो पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। कंपनी कैन रिफ्यूज। हाँ, कंपनी इतना शेयर होल्डर को बोल सकती है आपको पैसा चाहिए, आप आपके शेयर्स को बेच लो, आपको कोई ना कोई ग्राहक मिल जाएगा, उससे आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जो भी मार्केट का रेट चल रहा है। कंपनी को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट। ओके, नाउ यस, एक कॉन्सेप्ट ज़रूर है जिसको कहते हैं, अगर आप ऊपर देखो, और कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक शेयर्स। अगर कंपनी खुद ये डिसाइड करती है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीद लेंगे, फिर से खरीद लेंगे, ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना पैसा मिल जाएगा। दैट डज नॉट नॉर्मली हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अ कंपनी विच इज़ फाइनेंशियली वेरी वेल टू डू, जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो ये डिसाइड ज़रूर कर सकती है, बट ओनली इन दीज टू सिचुएशंस। कब पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को? देखो, अगर कंपनी बंद होगी और पैसा बचा तो मिलेगा, और अगर कंपनी बाईबैक ऑफ शेयर्स करेगी, मतलब वो शेयर्स आपसे खरीद लेगी, तो फिर आपको आपका पैसा, वरना नहीं मिलेगा, वरना आपका पैसा ये कंपनी में परमानेंटली चला गया। नेक्स्ट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। कैसे? व्हेन वी वर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, व्हाट डज डिविडेंड मीन? अरे इनकम, तुमने पैसा डाला कंपनी में, ओके, अगर आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करो, एफडी, फिक्स डिपॉजिट,
जो आपको पैसा मिलता है ना रिटर्न में, ओके, इंटरेस्ट बराबर, वो एक तरीके से फिक्स्ड रहता है। व्हाट डज फिक्स्ड मीन? सर मुझे ना हर साल 6%, 5,000, 6,000 सर हर साल मिलता है। सर नॉर्मल है ये, सब कोई सब कम ज़्यादा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है, जो उसकी इनकम है, वो हमेशा कम ज़्यादा, जैसे ये है ध्वनि वेव, साउंड वेव, ओके। सो जैसे साउंड ऊपर नीचे, ओके, वेरिएशंस करता है, फ्लक्चुएशंस करता है। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नेवर से, कभी बोलेगा भी नहीं वो मुझे पिछले साल भी इतना मिला था, अभी भी इतना मिला है, आगे भी इतना मिलेगा, नहीं। पिछले साल जो मिला उसमें देयर विल बी अ डिफरेंस इन आज जो मिला और जो कल मिलने वाला है, बिकॉज जैसे पहले कहा था द फॉर्चून्स, किस्मत ऑफ अ इक्विटी शेयर होल्डर इज टाइड अप विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी डूइंग गुड कमाई, कंपनी डूइंग बैड कमाई, कंपनी डूइंग नथिंग, नो कमाई, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। नेक्स्ट फीचर इक्विटी शेयर्स, आई थिंक देयर आर अराउंड 13, तो लिस्ट काफी लंबी है। राइट, राइट मतलब अगर आप एक इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, इक्विटी शेयर्स खरीद के, तो आपके क्या क्या राइट है? देखो अलग अलग राइट मिलते हैं, ये हमने शेयर्स में भी किया था, फीचर्स ऑफ शेयर्स में। अच्छा, पहला राइट टू वोट, वो जो एजीएम होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग बराबर, उसमें जब मैं जाऊंगा तो मैं वोट कर सकता हूं और मेरे वोट के वजह से बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट किया जाता है, बड़े बड़े प्लान्स को अप्रूवल दिया जाता है, ओके। तो मेरा वोट बहुत पावरफुल है, यस। आपको वोट करने का राइट मिलेगा। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, जो कंपनी बड़ा प्रॉफिट कमाती है ना, उसमें थोड़ा शेयर मुझको भी मिलता है, आपका राइट बनता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, अगर मैं चाहूँ आई कैन गो टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और मैं वहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझको जानना है आप लोग मेरे पैसे के साथ, नॉट मेरे पैसे के साथ, जो भी आपको पैसा दिया गया है, what are you doing with that money, I want to check, you can do that, why not, okay। and lastly right to transfer shares, आपका राइट है, आप शेयर्स अपने पास रखो, अगर आपको आपके बेटे को, बेटी को, वाइफ को, या आपको किसी तीसरे को बेच देना है, बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिटरली ट्रांसफर भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, इट इज योर राइट। नेक्स्ट, so you get multiple rights the moment आप, okay, if you go to a country for work, काम करने के लिए अगर आप जाते हो, आपको ज़्यादा कोई राइट्स नहीं मिलते, बिकॉज यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट कंट्री। वोट आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो वहाँ पे, ओके। हाँ, तो उसी तरह अगर आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाओ, कुछ एग्जाम्स देकर, वहाँ पे कंटिन्यूसली रहकर, हाँ, तो फिर आपको राइट डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। व्हाट डज दिस मीन? ये प्रेफरेंशियल क्या होता है? देखो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदो तो आपको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर को स्टार्ट में नहीं मिलता। एग्जाम्पल, व्हाट डज द वन प्रेफरेंस मीन? पहले, अच्छा, पहला मतलब व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स कि हमको डिविडेंड देना है, हमने कमाया इतना, हमको इसमें से थोड़ा देना है, बट सबसे पहले कौन से शेयर होल्डर को दे? प्रेफरेंस। क्यों? उसका नाम है। तो इक्विटी का क्या? उसको रुकना पड़ता है, लास्ट तक रुकना पड़ता है। तो आई रिपीट, इक्विटी शेयर होल्डर को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लिस्ट में से, लाइन में से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आगे आओ, तुम पहला पैसा रखो, कंपनी बंद हो रही है, तुम पहला पैसा रखो, अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। प्रेफरेंस नहीं मिलता अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग पावर। व्हाट डज दैट मीन? वेल, ऐसा है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो कंट्रोल तो आपके पास में होना चाहिए, ओके, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द कंट्रोल, तो मतलब गाड़ी कहीं पे भी चली जाएगी एंड ऑटोमेटिकली वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कार्स, जहाँ पे आप बस ड्राइवर सीट में बैठ जाओ, गाड़ी स्पीड, लेफ्ट राइट, यू टर्न सब डिसाइड कर लेगी। बट देयर इज अ फियर, नहीं, अगर गलती हो गई तो मेरा कंट्रोल नहीं है गाड़ी के ऊपर। सिमिलरली
कंपनी का कंट्रोल किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर एन इक्विटी शेयर होल्डर यू हैव द कंट्रोलिंग पावर. गाड़ी लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, किधर रुकेगी, क्या करेगी, यूटर्न कहाँ पे मारेगी, everything is decided by the equity shareholders via they are voting through the general meetings. Next, risk already determined, already spoken to you in advance. What is that? कि रिस्क जो होता है, काय का रिस्क, कि कंपनी को अगर कुछ घाटा होता है तो वो नुकसान इनडायरेक्टली, चोट किसको पहुंचाता है? इक्विटी शेयर होल्डर. बाकी के लोग बाहर वाले हैं, उनको कोई फर्क गिरता नहीं है. कंपनी का भला इज गुड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी का बुरा इज बैड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर. दे टेक द रिस्क, वो अपने पे रिस्क लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, रेसिड्यूअल क्लेमनेंट. उधर कुछ अच्छा दिखता नहीं, इधर काफ़ी अच्छा दिखता है. ओके, मतलब क्या है? देखो भाई, अगर खाना बनाया जाए ना, ऐसा सोचो, सबसे पहले अगर सामने दो लोग हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, अगर सामने दो लोग हैं, सबसे पहले किसको आप दोगे? उसका नाम प्रेफरेंस है. प्रेफरेंस, आप आगे आ जा, आगे आ जा, ले तू खा, पहले खा. और खाना खत्म तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेचारा भूखा रह जाएगा. ओके, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने थोड़ा खाया, हम लोग इक्विटी वाले को बोलेंगे बचा हुआ तू खा ले. इट साउंड्स लिटिल बैड. सर क्या बचा हुआ, दूसरे का झूठा आप इक्विटी शेयर होल्डर को खिला रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, झूठा नहीं खाना यहाँ पे. बट जब बड़ी दावत लगती है, बड़ी दावत, बहुत खाना पड़ा है टेबल के ऊपर, और दो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 200 इक्विटी शेयर होल्डर है, और दो ही प्रेफरेंस वाले पहले आएंगे, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, जितना उनका पेट है उतना लेंगे ना. बाकी जो बड़ी दावत में पूरा खाना बाकी है, अच्छा, उसका मजा कौन लेगा? द इक्विटी शेयर होल्डर. सो व्हेन यू से दैट दे आर रेसिड्यूअल, बचा हुआ चीज वो लेते हैं, क्लेम करते हैं, मांगते हैं. ओके, वो भला बुरा दोनों हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ बचता नहीं है तो बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, बट कभी कभी इतना बचता है कि उसका मजा ही दूसरा कुछ होता है. रेसिड्यूअल, रिमेनिंग चीजें उनको दी जाती है एज फार एज इनकम इज कंसर्न. नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? देखो, चार्ज का मतलब एक तरीके का कंट्रोल होता है. द इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी. अगर एक कंपनी बैंक से पैसा ले, लोन, तो बैंक क्या बोलती है? हमारे पास कुछ गिरवी रखो. तो कंपनी क्या करती है? सर ये हमारी गाड़ी है, सर ये हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ये आपके पास. उसका मतलब क्या है? वो फर्नीचर पे, वो गाड़ी पे, वो बिल्डिंग पे किसका कंट्रोल आ चुका है? बैंक का. जब तक आपने लोन लिया है, अगर कुछ घपला हो जाएगा, बैंक क्या करेगा? आपसे पूछेगा नहीं, वो गाड़ी, वो बिल्डिंग, वो फर्नीचर लेके बेच देगा. बैंक बोलेगा हम हमारा पैसा ले रहे, क्योंकि हमारा चार्ज था उन चीजों पर जब तक आपने हमसे कर्जा लिया. इफ यू पे ऑफ द डेप्ट, लोन, हाँ, उनका चार्ज मिट जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं बोल सकते. दे कैन नॉट से लाइक दिस. ऐसा बाहर वाले लोग बोलते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा अगर कुछ बचा तो हमको दे देना, अगर नहीं बचा हमारी बुरी किस्मत. When they buy equity shares, उस खरीदने के वजह से, उस पैसे को इन्वेस्ट करने वजह, कंपनी के एसेट्स पे किसी भी तरह का चार्ज, हक, इक्विटी शेयर होल्डर बुरे समय में नहीं जता सकते. नेक्स्ट, 9वां मुद्दा, बोनस इशू. सो नाइस. व्हाट डू यू मीन बाय बोनस? अरे सर, वो दिवाली के टाइम पे ना कंपनी वाले ने एक महीने का पगार मेरे को एक्स्ट्रा दिया. मैंने तो उसके लिए मेहनत ही नहीं की, फ्री का मिल गया. हाँ, उसको कहते हैं बोनस, फ्री का. सो व्हाट डू यू मीन बाय बोनस इशू? व्हेन अ कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत अच्छी कंपनी, मार्केट में, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, बहुत अच्छा काम कर रही है, सेल्स तगड़े हैं,
अच्छा कमाई कर रही है, तो अपने शेयर होल्डर्स को, कौन से शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो कंपनी खुश करना चाहती है। खुश करना चाहती है, कैसे खुश करती है? फ्री का देती है। फ्री का क्या देती है? शेयर्स। नॉर्मली शेयर्स खरीदने तो पैसा देना पड़ता है ना, तो कंपनी क्या बोलती है? आप हमारे मालिक हो। अ चाइल्ड, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ चाइल्ड, योर मॉम एंड डैड ओके टुक केयर ऑफ यू, गुड बैड, कभी कभी उन्होंने अपना पेट काटा और आपको खिलाया, नॉट लिटरली ओके। ऑल ऑफ दैट यू आर ऑब्जर्विंग। आपने देखा है कि आपके मम्मी पापा ने क्या मेहनत की आपके लिए, आपको बड़ा करने के लिए, एंड सम मॉम एंड डैड ट्रूली हैव डन अ ग्रेट जॉब ओके। देयर विल बी अ डे जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमाओगे, आप एक अच्छे जॉब पे रहोगे, आपने कोई अपनी कंपनी स्टार्ट की रहेगी, आमेन टू दैट, डेफिनेटली ऐसा दिन आएगा, बराबर। सो यू विल ऑल्सो थिंक, क्या, अरे मेरे टाइम पे ना मेरे पापा को वो वाली बाइक खरीदनी थी, वो वाली गाड़ी खरीदनी थी, वो वाला घर चाहिए था, बट मेरी वजह से, मेरे एजुकेशन की वजह से उन्होंने, बट दे वर विथ मी, मेरे साथ खड़े रहे थे। अब मेरी हैसियत है, आई एम डूइंग गुड ओके, तो मैं उनको वो गाड़ी दूंगा, मैं उनको वो घर दूंगा, मैं उनको वो बाइक दूंगा फ्री। क्यों? मेरे जब मुझे जरूरत थी, दे स्टूड विथ मी। कंपनी कुछ ऐसे ही सोचती है। इक्विटी शेयर होल्डर, बाकी के कोई नहीं खड़े थे, सब भाग गए, इक्विटी शेयर होल्डर मेरे साथ डटे रहा। अभी मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसको फ्री के शेयर्स दूंगा, शेयर्स दे दूंगा, अगर वो चाहे वो बेच सकता है और वो पैसे कमाएगा। सो शेयर्स जो फ्री के मिलते हैं, किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको कहते हैं बोनस शेयर्स। अदर्स डोंट गेट दीज बोनस शेयर्स। राइट इशू, अनदर टाइप ऑफ एन इशू। इशू का मतलब शेयर्स बेचना, इशू का मतलब शेयर्स बेचना, बराबर। राइट का मतलब क्या है? देखो भाई, घर है, पापा है, मम्मी है, बच्चे हैं, बराबर, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी पे पहला राइट, हक किसका है? बच्चों का, नॉर्मली बच्चों का। कोई बाहर वाले से आएगा, दूर का रिश्तेदार, नहीं नहीं नहीं, बच्चों का कैसा हक है? मैं आपके ताया के बेटी के लड़के के चाचा के लड़का हूं, मेरा हक है। अरे तू बाहर वाला है, तेरा हक कैसे हुआ? राइट शेयर्स का मतलब क्या है? व्हेन अ कंपनी सेल्स शेयर्स, अ गुड कंपनी, डिमांड बहुत है मार्केट के अंदर, सबको खरीदना है, सबसे पहला हक किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सबसे पहला हक। अगर एक लाइन लगती है शेयर्स खरीदने की, हम इक्विटी शेयर्स वाले को बोलेंगे पहले आप खड़े रहो, पहले हम आपको गर्मा गर्म देंगे। अगर आप बोलो हमको नहीं चाहिए, ओके, फिर हम पीछे नए वाले के पास जाएंगे, बट सबसे पहला हक शेयर्स खरीदने का हम आपको देंगे ओके। दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट इशू, कि अगर नए शेयर्स बेचे जा रहे हैं, हक सबसे पहला खरीदने का किसका बनता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू देयर आर 13 पॉइंट्स। फेस वैल्यू ऑल्सो कवर्ड अप प्रीवियसली, कि these are faces okay, and every face has a certain value okay, automatically many actors, just because face अच्छा है okay, उनको मिल जाते हैं, उनको इतना तो कमाई मिलता ही हर, maybe they don't know acting okay, तो every face has a certain value connected to it, every equity share has a certain face value okay। मतलब अगर ये एक शेयर है, एग्जाम्पल ये एक शेयर है ओके, इसके ऊपर एक वैल्यू होगा, हर एक करेंसी नोट पे, कोई भी देश का रहने दो, एक वैल्यू तो रहता ही है ना, हाँ, तो वो कहा जाता है उसका फेस वैल्यू। फिक्स नहीं होता, इट इज नेवर फिक्स्ड, कभी वो 10 रुपया होगा, कभी वो 1 रुपया होगा। सो डिफरेंट कंपनीज डिसाइड, उनकी जो थिंकिंग है कि हमारे इक्विटी शेयर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू क्या होना चाहिए। देयर कैन बी 10 पीपल हु बाय शेयर्स, फेस वैल्यू इज ऑलवेज द सेम, ऑलवेज द सेम। इशू प्राइस अलग हो सकता है, जो हमने इसके पहले शेयर्स के फीचर्स में पढ़ा है। व्हाट इज इशू प्राइस मीन? जब मिस्टर ए आया खरीदने, कंपनी ने बेचा उसे 12 रुपया में,
मिस्टर बी आए, उनको मिला 15 में, क्यों? वैल्यू बढ़ गया, बराबर। तो रिपीट, द इशू प्राइस, सेलिंग प्राइस वो अलग अलग रह सकता है, बट द फेस वैल्यू इज द सेम। आप खरीदो, आप खरीदो, आप खरीदो, आप खरीदो, फेस वैल्यू सबके लिए सेम होता है। ओके, नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। वेल, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ओके, वो डिटरमाइन करता है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, नॉट भाजी मार्केट, ओके, नॉट लड्डू पेड़ा का मार्केट, नहीं नहीं नहीं, ओके, हाँ, नॉट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या भाव चल रहा है, बराबर। तो इफ अ कंपनी, एनी कंपनी को गवर्नमेंट से या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 500 करोड़, 2000 करोड़, दैट मीन्स वो कंपनी वो प्रोजेक्ट से बहुत पैसा कमाने वाली है। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर, भविष्य ब्राइट है, उज्जवल है, तो उसका भाव भी बढ़ जाता है। जब उसका भाव बढ़ जाता है, बिकॉज मैनी इकोनॉमिक्स ये आपको पढ़ाता है, जब डिमांड बढ़ जाता है तो रेट भी तो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, बराबर। रेट बढ़ जाता है तो जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनका भी तो वैल्यू बढ़ जाता है। सो मार्केट वैल्यू, ओके, इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशंस, ओके। हाँ, कभी कभी द इकोनॉमी goes down, okay, so automatically the markets get affected, the stock exchange get affected, and therefore the price of shares also gets affected, okay. So the market value of equity share is never the same, it increases or it decreases depending upon various factors. Last, capital appreciation. If anybody buys a house, कोई भी अगर एक घर खरीदता है, बराबर, he wants कि जो मैंने खरीदा है, उसका जगह खरीदी है, लैंड खरीदा है, उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, तारीफ नहीं, उसका रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, तो होता है ना, अगर आप शेयर्स खरीदो, उसका एक वैल्यू होता है, उसको आप कैपिटल कह सकते हो, और वो, ओके, अगर आप किसी से 10 लाख रुपया लो, 10 लाख रुपीस, और उसको रखो कहाँ पे? तिजोरी में रखो, ताला मार कर, बराबर। 1 साल बाद वो 10 लाख का क्या होगा? कुछ नहीं, थोड़ा धूल आ जाएगा, बट वो 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा। इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज, ओके। एक्चुअली एक तरीके में अगर आप सोचो, उसका परचेसिंग पावर कम हो जाता है ना, दैट्स अ डिफरेंट मुद्दा। आज जो 10 लाख खरीद सकता है, 1 साल के बाद में वो 10 लाख वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा, वो प्रोडक्ट महंगा हो गया रहेगा, तो उसको कहते हैं रिडक्शन इन परचेसिंग पावर, ओके। अभी उस पर जाते नहीं है। तो मैं मेरे पैसे को कैसे अप्रिशिएट करूं? आप इक्विटी शेयर्स खरीद लो कोई अच्छे कंपनी के, अगर वो कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली जो पैसा आपने डाला है, जिसको कैपिटल कहते हैं, वो भी अप्रिशिएट होगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जस्ट हैविंग मनी विथ यू, जेब में, वो कभी इंक्रीज नहीं होने वाला। अगर आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हो बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स फॉर कंपनी, डेफिनेटली दैट कैन appreciate. Now these were the 13 points that are connected to equity shares. Before I give you our code word or code phrase, very quickly I'll go through the types of equity shares. 2 टाइप के equity shares होते हैं, एक होता है with normal voting rights, वो सबको मिलता है। तुमने खरीदा 4 shares, तो आपको उस proportion में voting rights मिलते हैं। Now I repeat myself, proportion का मतलब क्या है? If somebody has 10,000 शेयर्स, उसको उसके वोट्स जो है वो मात्रा में, क्वांटिटी में ज्यादा है, उसके वोट्स का वजन ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा शेयर्स है, ओके। अगर किसी के पास 10 शेयर्स है, 10 शेयर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, मतलब उसने कम पैसा डाला है ना। 10,000 शेयर्स, उसने ज्यादा पैसा डाला है। और अगर ये 10 शेयर्स वाला बोले नहीं मेरे को ये प्लान पसंद नहीं है, उसकी वजह से क्या गाड़ी अटक जाएगी? नहीं। प्लीज नोट, 1 person हैविंग 10,000 शेयर्स, 1 person हैविंग 10 शेयर्स, और अगर ये वाला बोलता है नहीं मेरे को पसंद नहीं, पर तेरे पास तो 10 ही शेयर्स है, उसका कितना ताकत होगा? 10,000 शेयर्स का ताकत ज्यादा होगा। तो इसको कहते हैं, प्लीज नोट, वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर्स इज इन प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग। इफ यू हैव गॉट मोर शेयर्स,
you have more powerful voting rights. If you've got less shares, you have voting rights but less powerful voting rights. And the next, equity shares with differential voting right. Okay, differential का मतलब क्या? अलग अलग. Such equity shares have varying rights, more less regarding dividend, voting or otherwise. जो इसका डिटेल्स जो है वो रूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट रूल 2014 कंसर्निंग शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स दिया गया है. यू कैन आइदर टेक इक्विटी शेयर्स विच हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स जो प्रोपोर्शन में आपको मिलते हैं, और यू कैन हैव वोटिंग इक्विटी शेयर्स जिसमें क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट रहता है. ओके, मतलब सेम नहीं रहता. जिस कनेक्शन में आपने वो शेयर्स लिए हैं उस कनेक्शन के हिसाब से आपके वोटिंग राइट्स अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में डिफर करते हैं. राइट नाउ, हाउ डू आई रिमेंबर द फीचर्स of equity shares is what I am coming to. If you see above, because there were 13 points, इतने points है, इसके लिए मेरे को आपको छोटी स्टोरी बतानी पड़ेगी ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए. टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर लेक्चर, बिग एफएम प्यार सी, एक्चुअली वो प्यार से दिखता है, आप सोचो प्यार सी. अभी ये बिग एफएम प्यार सी, बिग एफएम प्यार सी. ओके, बिग एफएम पे लोग, इट्स अ रेडियो चैनल, इट्स एन एफएम चैनल, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं. कुछ लोग जो रेडियो सुनते हैं, ओके, थोड़ा पब्लिक कम हो रहा है उसका, बट ये people do listen to radios. It's a lot more easier to receive as far as reception is concerned compared to a television channel. तो लोग कॉल अप करते हैं, बिग एफएम जी, ओके, रेडियो जॉकी जी, ओके, ये वाला गाड़ी प्लीज प्ले करो ना, ये वाला गाना प्लीज प्ले करो ना. हाँ, तो यहाँ पे द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिग एफएम प्यार से आपको कैसे याद दिलाएगा. बिग एफएम दे दे प्यार से. सर आप प्यार से बोल रहे हो, पीआरसी, ऐसे सोचो ना, थोड़ी गाड़ी जल्दी चलाओ तो इट विल साउंड लाइक प्यार से. बट होल्ड ऑन, कंप्लीट नहीं हुआ ये. क्यों कंप्लीट नहीं हो गया? 2P 3R 4C, 2P 3R 4C. अब ये 2P 3R 4C क्या है? बिग एफएम दे दे 2P 3R 4C, 2 3 4, 1 मिनट, 4 अभी आया. ओके, बिग एफएम दे दे में क्या आता है? बोनस इशू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. ऑब्वियसली ना, अगेन इट्स नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर बट इट विल हेल्प इन रिमेंबरिंग द 14 पॉइंट्स. 2P परमानेंट कैपिटल, नो प्रेफरेंशियल राइट्स. 3R राइट्स रिस्क राइट इशू. 4C कंट्रोलिंग पावर, रेसिडुअल क्लेमनेंट, नो चार्ज ऑन एसेट्स, कैपिटल अप्रिसिएशन. बिग एफएम दे दे, प्ले करो ना, प्यार से प्ले करो. 2P 3R 4C. ओके, ऑल दीज पॉइंट्स आई होप will be able to remind you the maximum points which are connected to equity shares and its features. And I hope the past 40-45 minutes were useful to you in understanding कि इक्विटी शेयर होता क्या है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं. अगर आपको ये पिछला जितना समय हमने ये लेक्चर में बिताया समझ में आया तो कृपया करके लेक्चर को ज़रूर लाइक कर लीजिए. अगर आप डिसलाइक करते हो, कोई गम की बात नहीं है, बुरा भला ऊंच नीच चलते रहता है, बट डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का उपयोग करके ये हमको ज़रूर बता दीजिए कि आपको क्या चीज़ इस लेक्चर में खटका, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, जिससे आपका वो जो डिसलाइक है ना आगे जाके लाइक में बदल जाए. बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, और अपने दोस्तों तक ये चैनल के बारे में और जो भी यहाँ पे लेक्चर्स किए जाते हैं उसकी जानकारी फॉरवर्ड ज़रूर करा दीजिए. व्हाट्सएप पोस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पोस्ट कर दीजिए, फेसबुक की स्टोरी बना दीजिए, कुछ ना कुछ करके दूसरों तक जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए. टिल द टाइम हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. आई होप लव सराउंड्स यू ऑलवेज. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय.